Hello dear students, till previous lecture we had discussed the various type of problems based on Coulomb's law. So we do like to continue that particular topic. Suppose force between multiple charges, suppose I am going to consider an example like there are so many charges q1. The position vector of q1 from origin is r1, q2, and the position vector of q2 from origin is r2. Like the nth charge particle is qn and the position vector is rn, and we have to put another charge which is capital Q, and we have to calculate net force experienced by Q which is placed at origin. So we have to calculate F net. We know force is a vector quantity, so we have to add all forces in a vector form. Okay, so F net will become F1 plus F2 plus F3 plus and so on Fn. Okay, so by using this particular logic, we have to calculate a force on a charged particle by multiple charges. Suppose I am going to consider an example. Suppose there is a equilateral triangle and three charged particles Q, Q, Q are placed at the vertices of a triangle. Then we have to calculate force at any charge. Suppose the side of a triangle is A and A. So we have to calculate net electrostatic force at any charge. We know there will be two combinations. First one Q to Q and the other one is Q to Q. Suppose I am going to consider this one charge and I am going to calculate net force on this particular charge. So both charges having same nature, so they will repel to each other. So the force on this Q by this one will be attractive force or repulsive. We know both charges having same nature, so it will be repulsive in nature. So I am going to use the direction of that particular force. Suppose this is the force experienced by this F. Okay, by this one also positive, so this one also repel to each other, so this one will be also F. Now we know in an equilateral triangle the angle is 60 degrees, so this one angle is also 60 degree. Now the F net is F plus F. We have to add these two vector forces. We know force is a vector quantity, so we have to add these two by a vector method using parallelogram law. And we know according to parallelogram law, suppose F is suppose A vector plus B vector. Then if we are going to add both of these, then we will calculate the magnitude of this vector addition like as under root of A square mod of A square plus mod of B square plus 2 mod of A mod of B cos theta, where theta angle between A vector and B vector. Okay, so this is the law parallelogram of vector addition. So according to that, there are two forces F and F. See, the distance between charges is same and the magnitude of charge is same, so I can use F and F. Okay, or we can write down it F1 or F2, it doesn't matter. Okay, the magnitude of F1 and F2 will be same. See, the magnitude of F1 is equal to K, Q1 is Q, Q2 is Q upon R square which is A. So K Q1 Q2 upon A square, or Q1 Q2 is KQ, so it will be KQ square upon A square, which is also equals to magnitude of force F2, because the magnitude is same of charges and the distance is also same. So F1 F2 सेम है बेटा आपका. अच्छा, एंगल की बात करें तो बेटा 60 डिग्री है, तो मैं यहाँ ये अप्लाई करता हूँ. अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, आप बोलोगे कि सर F1 स्क्वायर इज F है, तो मैं लिखता हूँ कि F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos 60, 2F स्क्वायर cos 60. अच्छा, cos 60 होता है बेटा sin 30 हाफ होता है, cos 60 क्या होता है, sin 30 होता है, और वो कितना होता है, हाफ होता है. तो देखो मैं यहाँ से लिखूंगा कि F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर, और cos 60 बोले तो sin 30 बोले तो बेटा हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया. आपका क्या बनेगा, आपका स्क्वायर रूट में बनेगा बेटा
3f square. F net will become अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो ये आपका बनेगा अंडर रूट ऑफ 3f स्क्वायर. इट मींस अंडर रूट ऑफ 3f एंड द वैल्यू ऑफ f इज kq स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर. सो रूट 3 kq स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर. This is the magnitude of net force experienced by a charge particle which is placed at a vertices due to remaining to all charges. Okay, the direction will be if I am going to complete it using a parallelogram law, so these both forces are same, so it will be half of this one, है ना. तो इस 30 के एंगल पे आपका एक नेट फोर्स जो लगेगा वो कितना लगेगा बेटा, रूट 3 टाइम्स हो जाता है. अगर आपसे बोला गया हो वेक्टर में, अगर आपने पढ़ा हो तो अगर दो फोर्स है दोनों के बीच का एंगल 60 है तो उनका रिजल्टेंट जो आता है वो रूट 3 टाइम्स आता है और किसी एक के बराबर आता है ना. ओके, द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम, सपोज कि मैं आपको थोड़ा सा मोमेंटम कंजर्वेशन और ये सब की बात करवाता हूं. देखो नेक्स्ट टाइप का एग्जांपल जो है मैं आपसे थोड़ा यही डिस्कस कर लेते हैं पहले कि सपोज कि आपका जो ये चार्ज पार्टिकल है वो ट्रायंगल ना होके आपका स्क्वायर हो. तो सपोज करके आपका एक स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ साइड ए, है ना. इसके वर्टिसेस पे चार्ज रखें Q and Q. Similarly, if you have to calculate a net force at a charge particle which is placed at any vertices, so I am going to consider this one. Suppose ये A है तो बेटा ये भी A है, ये भी है. अच्छा, इस पे कितने चार्ज पार्टिकल के, सपोज Q. ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स कितने होंगे बेटा, देखो इंटरेक्शन इस क्यू के साथ होगा, इंटरेक्शन इस क्यू के साथ होगा, इंटरेक्शन इसके साथ होगा, मतलब देयर विल बी 3 फोर्सेस. सपोज इसकी वजह से एक फोर्स आएगा वो यहाँ आएगा और कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर. अच्छा सर, इसकी वजह से भी एक रिपल्सिव फोर्स होगा वो इधर होगा, वो कितना होगा बेटा, सेम ही होगा k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर. सर इसकी वजह से जो फोर्स होगा उसका डिस्टेंस चेंज हो जाएगा और डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, इसका जो ये रूट 2a हो जाएगा. तो इसका जो फोर्स आएगा वो बेटा आएगा k q स्क्वायर अपॉन रूट 2a का होल स्क्वायर करोगे तो मतलब 2a स्क्वायर, है ना. अच्छा, फिर से वही बोलूं कि मेरे को इन तीनों का क्या करना है, वेक्टर सम करना है. इट मींस मुझे लगाना पड़ेगा एफ नेट. अगर मैं इसके रिजल्टेंट की बात करता हूं तो मेरे को इन दो का मिलेगा, उसको मैं इसमें ऐड कर दूंगा. अच्छा, इन दो का बेटा कितना है, आपको बोला फिर से ही किस पे है, 90 पे है. किस पे है, 90 पे है. और 90 पे है तो बेटा आपको लिखूंगा मैं, अगर इन दोनों का एफ समझता हूं तो मैं लिखूंगा एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos 90. ये इन दो का रिजल्टेंट निकाल लेता हूं, फिर तीसरे को मैं ऐड कर लूंगा तो इसका रिजल्टेंट बेटा cos 90 कितना होता है, 0 होता है. तो इसकी वजह से ये क्या हो गया, 0 हो गया. इट मींस मेरे पास क्या आया, रूट 2f, है ना, प्लस ये अगर मैं इसको f मान रहा हूं तो ये कितना बेटा f/2, रूट 2f प्लस ये कितना हो जाएगा बेटा f/2 हो जाएगा. ये क्या हो गया, नेट फोर्स आ गया, है ना. तो आपको किसी भी टाइप का ज्योमेट्री दिया हो, कैसे भी लोकेशंस पे रखा हो, आपको नंबर ऑफ पेयर कैलकुलेट करना है और आपको वेक्टर सम कर देना है फोर्स का. क्योंकि एफ नेट क्या होता है बेटा, आपको बोला कि एफ वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको करना है f1 प्लस f2 प्लस एंड सो ऑन, है ना. सपोज करके अब सिमेट्रिक कंडीशंस में आपका कोई चार्ज पार्टिकल रखा हो, सिमिलरली लाइक दिस. Suppose 3 charge particles are placed Q, Q and Q, and the other charge particle capital Q which is placed at the center of equilateral triangle, or similar to like this square of side A, and 4 charge particles are placed at the corners of a square, and the other one charge which is also placed at the center of square. So we have to calculate, if we have to calculate net force experienced by the central charge particle, then we are not supposed to calculate by using any row and methods. We know in symmetric conditions, suppose कि ये वाला Q जो है बेटा इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा. अच्छा, ये वाला Q क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा. और ये वाला Q क्या करेगा, रिपेल करेगा. अगर आपको बताया हो अगर ये वाला, अगर ये आपका जो एंगल है तो इसकी वजह से ये तीनों रिपेल कर रहे हैं और ये नेट क्या हो जाएगा, एफ नेट 0 आ जाएगा. एफ नेट 0 आ जाएगा. क्यों 0 आ जाएगा, क्योंकि सर ये सिमेट्रिक कंडीशंस में रखा है और सिमेट्रिक कंडीशंस में अगर आपका कभी भी चार्ज पार्टिकल रखा हो और उस पर अगर आपको नेट फोर्स कैलकुलेट करना हो, सो इट विल बी 0. ये भी एफ नेट 0 हो जाएगा. क्यों, क्योंकि देख ये इसको रिपेल करेगा तो ये वाला इसको रिपेल करेगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. ये इसको रिपेल करेगा तो ये वाला भी तो रिपेल करेगा बेटा, है ना. तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पेयर बनता है और एक दूसरे को
कैंसिल आउट कर देता है, तो उसकी वजह से क्या चलता है अपना नेट फोर्स 0 बनता है, नेट फोर्स 0 बनता है। अच्छा एक और टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं जो आपने 11th में किए होंगे। सी थोड़ा सा बात करते हैं। सपोज टू चार्ज पार्टिकल्स Q1 and Q2, suppose Q1 mass is 4 kg and Q2 charge particle Q2 suppose mass is 6 kg। अच्छा मैंने इन दोनों को रेस्ट से रिलीज किया, क्या किया, रिलीज किया, मैंने रिलीज किया। तो सोचो कि Q1 को Q2 क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, और Q2 जो है वो Q1 को रिपेल कर रहा है, वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। इसका मतलब क्या होगा, जैसे ही मैं इनको रिलीज करूंगा तो दे विल ट्राई टू इंक्रीज देयर डिस्टेंस ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स। अच्छा मान लो कि किसी टाइम पे जब ये यहां पहुंचा कौन 6 kg वाला, तो इसका स्पीड हो गया, मान लो सपोज करके इसका स्पीड हो गया 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मतलब मैंने बोला कि मैंने इन दोनों को रिलीज किया तो इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स है, उसकी वजह से क्या होंगे, ये एक दूसरे से अपार्ट होंगे, दूर जाएंगे, मतलब मान लो कि दूर जा रहे हैं तो उस टाइम उसे किसी मोमेंट पे अगर Q2 का स्पीड जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड हो गया टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन, देन व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ Q1, देखो स्पीड की बात कर रहा हूं क्योंकि मेरे को डायरेक्शन तो पहले से पता है, क्योंकि रिपल्सिव होगा मतलब Q1 जो है इसी डायरेक्शन में जाएगा, Q1 क्या जाएगा, इसी डायरेक्शन में जाएगा। अच्छा इसी डायरेक्शन में जाएगा, अगर सर आप बोलोगे सर हम इन दोनों को अगर सिस्टम मान ले, क्या मान ले, Q1 Q2 को अगर एक सिस्टम सपोज करता हूं, तो Q1 Q2 को सिस्टम सपोज कर रहा हूं तो इस पे किसी एक्सटर्नल फोर्स ने काम नहीं किया ना। अगर मैं Q1 Q2 को सिस्टम मान लेता हूं, सिस्टम पे अगर कोई एक्सटर्नल एजेंट वर्क नहीं करता है, कोई काम नहीं करता है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है, तो उस सिस्टम का मोमेंटम क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए, है ना, मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। अगर मैं यहां से लगाऊं कि m1v1 plus m2v2 should be equals to 0, m1v1 plus m2v2 should be equals to 0, अगर मैं उसको इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मानता हूं, इसको अगर मैं V2 बोल देता हूं, ठीक है, इनिशियल मोमेंटम तो 0 ही था, दोनों रेस्ट में थे, मैंने रिलीज किया दोनों को। अच्छा तो आप बोलोगे कि सर m2 जो है m1v1 should be equals to minus m2v2, should be equals to minus m2v2। अच्छा V1 कैलकुलेट करना मुझे, V1 मतलब चार्ज पार्टिकल Q1 का स्पीड चेक करना है, जब V2 का स्पीड जो कितना है 4 मीटर पर सेकंड, सो V1 should be equals to minus m2v2 upon m1, minus m2v2 upon m1। अच्छा V1 की बात कर लेते हैं, तो बेटा माइनस m2 का वैल्यू कितना है, तो बेटा m2 का वैल्यू 6 kg है। अच्छा और V2 कितना है बेटा, तो आपका 4 है। अच्छा आपका m1 जो कितना है बेटा 4 है, 4 से 4 कैंसिल आउट आ गया। अच्छा V1 जो है बेटा वो कितना है -6 मीटर पर सेकंड। अच्छा सर यहाँ माइनस का मतलब क्या है बेटा, अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूं तो V1 जो है अपोजिट आएगा, मतलब V2 के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, और कितने से जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड से, है ना। तो बेटा आपने जितने भी टाइप के प्रॉब्लम्स अगर आपने 11th में किए हैं तो वो सबके सब प्रॉब्लम्स यहाँ सेम किसमें, अरे कूलम्ब्स, ये जो आपका कूलम्ब्स लॉ है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये भी तो फोर्स है। और अगर फोर्स की बात करते हैं तो बेटा आपका जो भी वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स जो आपने 11th में डिस्कस किया वो सब यहाँ एप्लीकेबल कर सकते हैं, है ना। अच्छा तो एक और मैं आपसे बात करना चाहूंगा, कोई बोलेगा कि सर एक टॉपिक, एक पॉइंट है कि अगर आपने पढ़ा हो आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट होता है। According to theory of relativity of Einstein's, mass depends on speed. Mass depends on speed. It means मैं आपको लिख सकता हूं कि mass, स्टार मार्क करके ध्यान रखना, mass depends upon speed, but charge never depends. But charge never. बट चार्ज नेवर डिपेंड्स। इट मींस आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग मास जो है बेटा किसी पार्टिकल का, सपोज करके एक एम नॉट इसका रेस्ट मास है, एम नॉट क्या बेटा इसका रेस्ट मास है ना, और वो मान लो कि किसी स्पीड v से ट्रेवल कर रहा है, किसी स्पीड v से ट्रेवल कर रहा है, तो उसका जो रिलेटिव मास जो होगा वो क्या होगा, तो वो ऐसा दिया जाता है बेटा m इक्वल्स टू m नॉट अंडर द रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर, है ना। इसका मतलब ये होता है कि एनर्जी जो मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, बट चार्ज जो है वो क्या होता है, कंजर्व होता है। इसका मतलब ये है कि आपका मास डिपेंड्स ऑन स्पीड बट चार्ज नेवर डिपेंड्स ऑन इट,
अच्छा, आपसे कई बार ऐसा पूछा जाए एमसीक्यू टाइप में कि मान लो कि मैंने एक बॉडी से दूसरे बॉडी, मान लो कि कोई बॉडी है वो न्यूट्रल है, सपोज कोई बॉडी कैसी है, न्यूट्रल, मतलब इनिशियली इस पे कोई चार्ज नहीं है, इनिशियली कोई चार्ज नहीं। मान लो ये एक बॉडी है A है, इसका मास m1 है, और एक बॉडी B है, इसका मास सपोज करके m2 है। ठीक है, मैंने A से कुछ इलेक्ट्रॉन्स, मैंने A से मान लो n इलेक्ट्रॉन्स जो है मैंने B को शिफ्ट करवाया, मैंने A से n इलेक्ट्रॉन्स कहां शिफ्ट करवाया, B को शिफ्ट करवाया। अच्छा, मैं आपसे पूछूंगा कि A पे कैसा चार्ज जाएगा, तो आप बोलोगे सर A का जो चार्ज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, प्लस n ही हो जाएगा। अच्छा, B का चार्ज क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर B का चार्ज हो जाएगा माइनस n ही हो जाएगा। मतलब क्या है, मतलब ये है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग, एक और प्रॉपर्टी है चार्ज का, क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज द नेट चार्ज ऑफ ए सिस्टम, द नेट चार्ज ऑफ ए सिस्टम बिफोर इंटरेक्शन एंड आफ्टर इंटरेक्शन विल रिमेन सेम। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इनिशियली इन दोनों का नेट चार्ज देखता हूं तो कितना था, 0 था। अब मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट करवाया तो भी नेट चार्ज क्या होगा, 0 होगा। दिस इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दिस इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अच्छा सर, आपने चार्ज ट्रांसफर करवाया, चार्ज मतलब बोले तो इलेक्ट्रॉन, अच्छा इलेक्ट्रॉन बोले तो सर इलेक्ट्रॉन का मास तो होता है, अच्छा मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा, 9.1 into 10⁻³ -31 kg, which is very small as compared to मास, है ना। बट अगर मैं आपसे बोलूं कि A का मास चेंज हुआ क्या या B का मास चेंज हुआ क्या, तो एक्चुअल में आपका आंसर होगा यस सर, द मास ऑफ पार्टिकल m1 एंड m2 आल्सो चेंजेस इफ वी आर गोइंग टू शिफ्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम A टू B। अच्छा, A पे से इलेक्ट्रॉन गए हैं, मतलब कितने गए हैं, तो सर वो मास भले ही बहुत कम चेंज होगा बट मास में चेंज हुआ है। तो मास चेंजेस ड्यूरिंग चार्जिंग। मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी बॉडी को चार्ज करते हो तो उसका मास क्या होता है, चेंज होता है। क्यों होता है, क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने शिफ्ट होंगे उतने मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका चार्ज भी, मास भी चेंज होगा। बट ये मास जो है ना बेटा वो 10⁻³ kg है, तो हम उसको उतना ज्यादा कंसिडर नहीं करते हैं चार्जिंग में। बट अगर आपसे पूछा जाए कि मास चेंजेस, देन यस, मास चेंजेस ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ अ बॉडी। Mass depends on speed, yes. Charge depends on speed, no sir, never depends on speed. Okay, you should try to do more type of examples according to your any reference book or any sheet you may. Okay, so dear students, till now we had discussed about the electrostatic force. Now our next topic is electric field or electrostatic field. Actually बच्चे जो है ना कि अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले फोर्स पढ़ाया मैंने, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है या अपना इंडियन कल्चर, इंडियन एजुकेशनल ट्रेंड है कि पहले क्या पढ़ाया जाता है, फोर्स पढ़ाया जाता है, उसके बाद फील्ड पढ़ाया जाता है। लेकिन एक्चुअल में होता क्या, आप अगर स्टैंडर्ड बुक्स देखोगे फॉरेनर राइटर्स की, तो उसमें ये होता है कि बेटा पहले फील्ड होता है तो फोर्स होता है, पहले फील्ड होता है तो फोर्स होता है। अगर मैं आपको डे बाय डे लाइफ जनरल एग्जांपल की बात करता हूँ, मान लो कि ये किसी का सपोज करके ये किसी का मैंगो गार्डन है, क्या है, मैंगो गार्डन है ना, मैंगो ट्रीज यहाँ है, ठीक है। अच्छा, आपको मन हुआ कि इसमें मैंगो देख के आपका मन हुआ कि सपोज करके आप यहाँ हो, है ना, और आपका मन हुआ कि मुझे मैंगो लेना है, मैंगो चुराना है, सपोज कर। अगर आपका मन हुआ कि आपको मैंगो चुराना है और आप इस पर्टिकुलर फील्ड से बाहर हैं, अगर आप जब तक इस पर्टिकुलर फील्ड से, ये क्या है बेटा, फील्ड है ना, अगर आप इस पर्टिकुलर फील्ड से बाहर है तो आपके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं है कि कोई मुझे देख लेगा या कुछ और, मतलब आपको फील्ड से बाहर है आप, तो आपके पास क्या है, नो फोर्स, है ना। कि आप फील्ड से बाहर है तो आपको कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हो रहा, आपको कोई टेंशन नहीं है कि मुझे कोई देख रहा है या नहीं। लेकिन जैसे ही आप यहाँ अंदर पहुंचे, जैसे ही आप अंदर पहुंचे, इट मींस आपको क्या हो जाएगा, फोर्स एक्सपीरियंस करोगे। क्या करोगे, फोर्स एक्सपीरियंस करोगे। मतलब क्या होता है, एक्चुअल में ये होता है बेटा कि अगर फील्ड पहले आता है उसके बाद फोर्स आता है। एक्चुअल में होता क्या है, फील्ड पहले आता है उसके बाद फोर्स आता है। लेकिन अपना इंडियन जो ट्रेंड है उसमें पढ़ाया ऐसा जाता है कि पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा दो, उसके बाद फील्ड पढ़ा दो, फोर्स पढ़ा दो और फील्ड पढ़ा दो, वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा इजी हो जाता है ना। तो फोर्स का एक्सिस्टेंस बाद में है, पहले फील्ड एक्सिस्ट करता है ना, सिंपली। अच्छा, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कैसे है, तो आपको कैसे पता चला। तो मैं सिंपल से एक एग्जांपल की बात करता हूँ। मान लो कि कोई चार्ज है Q, मान लो कि कोई चार्ज Q है। अच्छा, ये चार्ज है तो इसका फील्ड रहा होगा,
मतलब ये चार्ज का एक फील्ड है, इस चार्ज का पर्टिकुलर फील्ड है। जैसे होता है ना, अपना गांव होता है तो गांव पंचायत है तो पंचायत का एक फील्ड होता है, सिमिलर लाइक दैट ये अगर आपका कोई चार्ज है Q तो इसका एक फील्ड है। मान लो एक टेस्ट चार्ज, कौन, टेस्ट चार्ज Q0, टेस्ट चार्ज कौन, Q0, Q0 को मैं यहां लेके आया, मैं इस टेस्ट चार्ज Q0 को इस Q के फील्ड में लेके आया, तो ये क्या करेगा, एक्सपीरियंस ए फोर्स, एक्सपीरियंस ए फोर्स। मान लो मैं इसको r डिस्टेंस पे लेके आया, कितने डिस्टेंस पे, r पे, तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अच्छा फोर्स एक्सपीरियंस किया तो वो f जो था एक्सपीरियंस करेगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ, तो आप बोलोगे सर k q q0 अपॉन r स्क्वायर, k q q0 अपॉन r स्क्वायर। अच्छा मान लो कि अगर मेरा टेस्ट चार्ज को यूनिट बना दूं, लेट q0 इक्वल्स टू 1 कूलम, इट मींस यूनिट टेस्ट चार्ज, क्या बोल दूं, यूनिट टेस्ट चार्ज। अगर ये यूनिट टेस्ट चार्ज जो है कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो वो मैं आपको बताता हूं कि F जो है वो क्या बन गया बेटा, आपका बन गया k q और ये 1 हो गया अपॉन r स्क्वायर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसा डिफाइन किया गया, इफ वी आर गोइंग टू प्लेस अ टेस्ट चार्ज Q0, a test charge Q0 in a certain field of a charge Q at a distance r, then the total force experienced by Q0 in field of Q is given as k q q0 upon r square. But if I am going to consider a value of test charge Q0 equals to 1 coulomb, then it will become electric field, then it will become electric field. It means electric field is defined as the force per unit charge. Electric field is defined as force per unit charge, force per unit charge. मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड को जो मैंने डिफाइन किया तो उसको मैंने बोल दिया फोर्स पर यूनिट चार्ज, है ना। मैं ये थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ। अब फोर्स पर यूनिट चार्ज आपको क्या बोला गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, कि कोई आपका चार्ज पार्टिकल है, उसके फील्ड में किसी दूसरे टेस्ट चार्ज को अगर मैं रखने जा रहा हूँ, किसी टेस्ट चार्ज को मैं रखने जा रहा हूँ, तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अच्छा तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने बोला फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स तो मान लो कि F लग रहा था, मेरा यूनिट चार्ज मतलब टेस्ट चार्ज Q0 से अगर मैंने डिवाइड किया तो ये क्या आ गया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अच्छा फोर्स कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, वी नो फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, सो A is also vector quantity। अच्छा E की डायरेक्शन क्या होगी, तो बेटा E की डायरेक्शन वही होगी जो F की डायरेक्शन है, E की डायरेक्शन वही होगी जो F की डायरेक्शन है, क्योंकि अगर मैंने किसी वेक्टर को एक स्केलर से डिवाइड किया तो मैग्नीट्यूड सिर्फ उसका डिवाइड होगा, आपकी डायरेक्शन तो सेम रहेगी। अच्छा सर मैं E की यूनिट की बात कर लेते हैं, तो यूनिट बेटा फोर्स की है न्यूटन, फोर्स की यूनिट क्या है बेटा न्यूटन, और चार्ज की यूनिट क्या है कूलम। तो आपकी जो है बेटा कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट जो होगी वो क्या होगी, न्यूटन पर कूलम। अच्छा डायमेंशन की बात कर लेते हैं, तो डायमेंशन की बात करते हैं सर हमारे पास फोर्स है। अच्छा फोर्स की डायमेंशन क्या होती है बेटा, तो फोर्स की डायमेंशन आप बोलोगे सर न्यूटन है, और न्यूटन की डायरेक्शन होती है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास बोले तो m1l1t-2, है ना, एक्सेलरेशन बेटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो m1l1t-2 कौन आ गया, आपका फोर्स आ गया, न्यूटन आ गया। और कूलम बोले तो बेटा q जो I जो होता है वो होता है q/t, I होता है q/t, तो q क्या हो गया I इंटू टी, बोले तो 80, q क्या, q की डायमेंशन क्या हो गया 80, है ना, एम्पियर इंटू टाइम। अच्छा मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ a इंटू टी से, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायमेंशन बनेगी वो बनेगी बेटा m1l1t-3 और a-1, m1l1t-3a-1. It is too easy to calculate the dimension of any physical quantity if you know the basic formulas for that, and I hope कि आपने 11th में अच्छे से dimensions calculate करना पड़ा होगा, है ना। तो electric field is defined as the force per unit charge, force per unit charge, it means E equals to F by Q0। अगर मैंने Q0 टेस्ट चार्ज लिया तो उसको अगर डिवाइड करेंगे तो E equals to F by Q, that F we know force is a vector quantity, that's why electric field also vector quantity, and the dimension of E is Newton per coulomb, and the unit is Newton per coulomb, and according to the dimension of electric field is m1l1t-3a-1। okay, अब देखो आपसे पूछा जाता है कि व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड और कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। लेट अस कंसीडर अ पॉइंट चार्ज Q, लेट अस कंसीडर अ पॉइंट चार्ज Q, सपोज करके ये Q है, अच्छा विच इज प्लेस्ड एट अ सर्टेन पॉइंट,
Okay, now we are going to put another test charge q naught at a distance r, at a central distance r from q. Okay, so according to the definition of electric field is defined as the force per unit charge. Force per unit charge. What will be the force experienced by q naught, or what will be the interaction force between q and q naught? And we know according to Coulomb's law, the force is q naught upon r square. q naught upon r square. This is the force, है ना बेटा, ये force आया. अच्छा ये तो force आया, but मैं r कैप और लिख देता हूँ. क्या लिख देता हूँ? r कैप, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो ये मेरा force हो गया. अच्छा, डिवाइडेड बाय किससे करना है? q नॉट से डिवाइड करना है. अगर q नॉट से q नॉट कैंसिल आउट कर दूं तो मेरा e जो बनेगा बेटा वो क्या बनेगा? e बन गया सर q अपॉन r स्क्वायर और r कैप. q अपॉन r स्क्वायर और r कैप. वी नो r कैप जो है बेटा वो क्या है? यूनिट वेक्टर है. r कैप इज डिफाइंड एज r वेक्टर अपॉन मोड ऑफ r वेक्टर. r वेक्टर अपॉन मोड ऑफ r वेक्टर. इट मींस r कैप जो है उसका मैग्नीट्यूड यूनिट है, बट वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, और डायरेक्शन कौन सी होगी? जो r की डायरेक्शन है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज q अपॉन r स्क्वायर. अच्छा, आपसे बोला जाए कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है मल्टीपल चार्जेस की वजह से. सो इफ वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, then we will calculate it similar to force. In forces we are going to write down F net. The force experienced by a charge due to another multiple charges is F1 vector plus F2 vector plus F3 vector and so on. So here by the same logic E net will become E1 vector plus E2 vector plus and so on. See, this is the basic addition of vector, and we can calculate it by using parallelogram law or another method which we had discussed in chapter 11th named as vector. Okay, सो ये आपका क्या है? पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और ये है. अच्छा बेटा, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस है, बट वो हम पढ़ेंगे कहाँ? वो हम पढ़ेंगे किसमें? गॉस लॉ के एप्लीकेशंस में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट रॉड और वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो स्पेरिकल सेल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिक सीट, थिन सीट, है ना. तो वो सब हम कैलकुलेशंस पढ़ेंगे कहाँ? गॉस लॉ में. गॉस लॉ में कैलकुलेशंस इसलिए पढ़ेंगे कि बेटा आपको वहाँ इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा. अगर मैं यहाँ आपको थोड़ा सा हायर लेवल की अगर मैं आपको बात करूँ और मैं यहाँ से आपको फाइनाइट रॉड और फाइनाइट चीज़ें के लिए बात करूँगा, तो वहाँ को आपको कंटिन्यूस चार्ज डेंसिटी पढ़ना पड़ेगा. उसके बाद आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन जनरली एनसीईआरटी के सिलेबस से हटा दिया गया है कि आपको सिर्फ सिंपल जो है आपको गॉस लॉ या एप्लीकेशन यूज करना ही आपको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, अब थोड़ा सा बात कर ले कि सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ लाइंस यूज करते हैं जिनको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उनके प्रॉपर्टीज की, है ना. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड देयर प्रॉपर्टीज. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड देयर प्रॉपर्टीज. सी, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, what do you mean by electric field lines? Sir, basically electric field lines are the imaginary lines which are used to represent an electric field. Electric field lines are imaginary lines which are used to represent electric field. कि electric field lines जो है वो imaginary line है, वो electric field को represent करने के लिए ड्रॉ की जाती है. ठीक है. अच्छा सर, ड्रॉ की जाती है तो मैंने रैंडमली ऐसे ड्रॉ कर दी, सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई क्या? नहीं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने के भी कुछ रूल्स है, प्रॉपर्टीज है, कैसे कैसे होती है वो हम आपको वी विल डिस्कस वन बाय वन. द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन is like electric field lines. The very first property, electric field lines originates from positive or infinity. It means आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, उसका ओरिजिनेशन कहाँ से होगा? तो उसका ओरिजिनेशन होगा बेटा पॉजिटिव चार्ज से. इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और इन्फिनिटी. आपको समझाता हूँ कैसे. कि अगर सर आपका ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो ओरिजिनेट होगी, मतलब इससे जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, फील्ड लाइन
लाइंस की वो ऐसे होगी, आउटवर्ड होगी। कैसे होगी? आउटवर्ड होगी। अच्छा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट्स टू नेगेटिव कि अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इस पे टर्मिनेट होगी। कैसे होगी? इस पे टर्मिनेट होगी। इट मींस आपको एरो सिंबल ध्यान में रखना। इफ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देन वी हैव टू कंसीडर द डायरेक्शन ऑफ एरो अकॉर्डिंगली। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव से निकलती है और टर्मिनेट कहां होती है? नेगेटिव पे। अच्छा, टर्मिनेट कहां होती है? नेगेटिव पे। अच्छा, कोई बोलेगा सर ये पॉजिटिव से ओरिजिनेट तो हुई बट कर कहां गई, या फिर यहां नेगेटिव पे टर्मिनेट हो रही है तो आई कहां से? तो उसके लिए स्टेटमेंट ये बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव और इंफिनिटी एंड टर्मिनेट्स टू नेगेटिव और इंफिनिटी। देखो यहां अगर टर्मिनेट होने की बात करो तो यहां नेगेटिव पे टर्मिनेट हो रही है। अगर मान लो नेगेटिव चार्ज नहीं है तो कहां टर्मिनेट होगी? इनफाइनाइट पे टर्मिनेट होगी। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय इनफाइनाइट? तो सर इनफाइनाइट कुछ भी नहीं है एक्चुअल में। अगर आपको बोला गया हो कि इनफाइनाइट का मतलब बहुत बड़ा ही नहीं होता बेटा। इनफाइनाइट इट्स अ रिलेटिव टर्म। इनफाइनाइट इट्स अ रिलेटिव टर्म। अगर मैं बात करता हूं कि आपको ये चौक जो आपको चौक स्टिक दिख रहा है इसका मास अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे कि सर इसका मास जो है 0 के रेफरेंस में कुछ ग्राम में होगा ना। अगर आपसे पूछा जाए, मैं तो बोलता हूं कि इसका मास जो है नेग्लिजिबल है। इसका मास क्या है? नेग्लिजिबल है। तो हाँ सर, इसका मास नेग्लिजिबल हो सकता है कब? जब हम इस चीज को किसी बहुत बड़े मास वाले पार्टिकल से कंपेयर करें। लाइक मास ऑफ दिस चॉक स्टिक इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू मास ऑफ अर्थ। देखो इस चॉक स्टिक का मास कुछ भी है वो नेग्लिजिबल भी हो गया और इस चॉक स्टिक का मास जो है वो इनफाइनाइट भी हो सकता है। कब? इफ आई एम गोइंग टू कंपेयर द मास ऑफ दिस पर्टिकुलर चॉक स्टिक with mass of electron. See, इलेक्ट्रॉन का मास जो है 10⁻31 ऑर्डर का और इसका मास सपोज करके 1 ग्राम है। तो -31 के कंपेयर में 1 ग्राम जो है 10⁻31 के कंपेयर में 1 ग्राम जो है एक्सट्रीमली लार्ज है। इट मींस मैं बोल सकता हूं कि मास ऑफ चॉक स्टिक एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन इज इनफाइनाइटली। मतलब इनफाइनाइट क्या बेटा? एक रिलेटिव टर्म है जिसको हम कहां किससे कंपेयर कर रहे हैं उस पर डिपेंड करते हैं। ठीक है ना? सो आई होप द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी यू गॉट इट। According to this, electric field lines originates from positive or infinity and terminates to negative and infinity. अच्छा, ये तो very first property था। अच्छा, दूसरा property की बात करते हैं। कौन सा property? दूसरा property बात करते हैं। दूसरा property electric field lines का ये बोलता है if we are going to draw a tangent at any point of an electric field lines, if we are going to draw a tangent at any point of an electric field line, then the tangent represent the direction of electric field at that particular point. The tangent will represent the direction of electric field at that particular point. Suppose करके ये मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ठीक है, सपोज करके ये मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। इसके इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे मैंने टेंजेंट बनाया। इस पर्टिकुलर P पॉइंट पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया तो टेंजेंट ऐसा है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे ये जो टेंजेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। If we are going to draw a tangent at any point of an electric field line, if we are going to draw a tangent at any point of an electric field line, then the tangent will represent the direction of electric field at that particular point. इसका मतलब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो वो टेंजेंट उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, थर्ड प्रॉपर्टी की बात करता हूं। थर्ड प्रॉपर्टी ये बोलता है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अच्छा सर, आपने ये बोला कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। तो आप बोलोगे सर क्यों नहीं कर सकती? कर तो सकती। अच्छा, अगर मैं आपको पहले थोड़ा सा समझाता हूं फिर उसके बाद मैं स्टेटमेंट बोलूंगा कि अगर मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड 1 है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो 2 है। अच्छा, इस पर्टिकुलर इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे अगर मैं 1 का टेंजेंट बनाता हूं तो वो ऐसा है। ठीक है, अगर मैं 2 का टेंजेंट बनाता हूं तो ये ऐसा है। और आपने बोला कि सर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट बनाता हूं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। मतलब 2 के अकॉर्डिंग तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ऐसी होनी चाहिए।
और फर्स्ट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। मतलब सर एक ही पॉइंट पे कोई बंदा दो डायरेक्शन में मूव कर सकता है क्या, पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं यहां खड़ा हूं और मैं बोलूं कि मैं लेफ्ट भी जा रहा हूं और राइट भी जा रहा हूं, क्या ये पॉसिबल है क्या, नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर इफ they intersect then at the intersection point, if they intersect then at the intersection point there will be two possible direction for electric field which is not possible. See, अगर ये इंटरसेक्ट करती है तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन पॉसिबल होंगे जो कि एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है। तो स्टेटमेंट फिर से मैं रिपीट करता हूं, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर if they intersect then at intersection point there will be two directions of electric field which is not possible. अच्छा सर ये तो थर्ड प्रॉपर्टी हुआ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं। तो ये बोला जाता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन represents net electric field। मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो उस पर्टिकुलर पोर्शन में या उस पर्टिकुलर फील्ड में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। लाइक मैं एग्जांपल के साथ बात करूं कि सपोज करके यहाँ मैंने चार्ज रखा है, उसकी ये Q1 है, इसका फील्ड रहा होगा सपोज करके E1 फील्ड रहा होगा, ये Q2 है, उसका फील्ड रहा होगा मान लो कि E2 फील्ड रहा है। अच्छा Q1 का फील्ड इधर है और Q2 का फील्ड इधर है। अच्छा ये दोनों इंटरसेक्ट तो नहीं कर सकते, बट अगर मैं यहाँ बात करूं तो Q1 और Q2 दोनों की वजह से क्या होगा, नेट फील्ड होगा। यहाँ क्या होगा, नेट फील्ड होगा। इट मींस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो उस पर्टिकुलर एरिया में या उस पर्टिकुलर सराउंडिंग में या उस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन जहां कर रहे हैं उस पर्टिकुलर फील्ड में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। उस एरिया में किसको, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा द नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है वो भी डिस्कस कर लेते हैं, है ना। आई होप यू आर गेटिंग ऑल दीज पॉइंट्स प्रिसाइसली। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट फील्ड स्ट्रेंथ। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट फील्ड स्ट्रेंथ। सपोज करके मैंने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ किए हैं, सपोज करके ऐसे, ठीक ऐसे। मान लो कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, मान लो यहाँ। अच्छा आपसे बात की जाए इस पर्टिकुलर पॉइंट ए पे या बी पे या सी पे, ठीक है, आपको डेंसिटी सबसे ज्यादा कहाँ है, तो आप बोलोगे कि सर डेंसिटी जो है वो ए पे सबसे ज्यादा, उसके बाद बी पे है, उसके बाद सी पे। इट मींस डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट फील्ड स्ट्रेंथ। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट फील्ड स्ट्रेंथ, मतलब जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा है वहां उस फील्ड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा है। तो मैं बात करूं कि अगर डेंसिटी ऐसी है ना, डेंसिटी ऐसी है तो आपकी फील्ड स्ट्रेंथ भी कैसी होगी, तो आप बोलोगे सर फील्ड स्ट्रेंथ जो होगी वो क्या होगी, ए पे सबसे ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि ए का डेंसिटी ज्यादा है। फिर किसकी होगी, तो फिर बी की होगी, है ना। फील्ड स्ट्रेंथ जो है सबसे ज्यादा ए पे होगी, फिर बी पे, फिर सी पे होगी, है ना। तो द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट फील्ड स्ट्रेंथ आल्सो, ठीक है। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर एग्जिस्ट इन ए क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर एग्जिस्ट इन ए क्लोज लूप, मतलब ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो एग्जिस्ट क्लोज लूप बन जाए, ऐसा पॉसिबल कि इधर से गया और इधर से वापस आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर एग्जिस्ट इन ए क्लोज लूप। अच्छा क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसके लिए बेटा इसका क्लैरिफिकेशन जो मिलता है वो मिलता है अगर आपने टाइप ऑफ फोर्स पढ़े हैं 11th में, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। देयर आर टू टाइप ऑफ फोर्स,
conservative and non-conservative. You know, the basic difference between conservative and non-conservative is that the work done in a conservative force, does not depends on its path, or we can say work done in a conservative force in a closed path is zero. Work done in a conservative force in closed path is zero, whereas a non-conservative force it is non-zero. Or we can say work done by a conservative force in a closed path, work done by conservative force path independent, but work done by non-conservative force is path dependent. मैं सिंपल सा समझाना चाहूँ आपको, ज़्यादा उतना परेशान नहीं करना चाहूँगा कि सर कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव क्या है, क्यों है। सिंपल लॉजिक ये है बेटा कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो क्लोज लूप नहीं बनाता, अगर ये क्लोज लूप बनाता तो वर्क डन क्या होता, जीरो होना चाहिए कंजर्वेटिव फोर्स में, जबकि वर्क डन क्या आता है, नॉन जीरो आता है। वर्क डन जो आता है वो क्या आता है बेटा, यहाँ से नॉन जीरो आता है। अच्छा, वर्क डन नॉन जीरो आता है किसमें, क्लोज लूप में। अगर मैं एक चार्ज पार्टिकल को क्यू को मैं क्लोज पाथ में मूवमेंट करवाता हूं तो उसमें वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कैसा आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है। अच्छा, नॉन जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि या तो ये कंजर्वेटिव नहीं है, क्योंकि कंजर्वेटिव में क्या होता है, वर्क डन क्लोज पाथ में जीरो होता है, तो या तो ये कंजर्वेटिव नहीं है। लेकिन हम फोर्स पहले से पढ़ चुके हैं और हम डिफाइन कर चुके हैं 11th में ही कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। सो आपको सिंपल स्टेटमेंट ये देना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर exist in a closed loop because electrostatic force is a conservative force. And the work done in a closed path is non-zero in electrostatic force. So we can say that electric field lines never exist in a closed loop or closed path. Okay. The next property is number of field lines originating or terminating to a charge. The next property आपको सुनना है बेटा, the number of field lines originating or terminating to a charge is directly proportional to magnitude of charge. इसका मतलब ये है कि आपका कोई चार्ज है, उससे अगर मान लो आपका एक कोई चार्ज है, उससे अगर आपकी जो फील्ड लाइंस है वो कितनी है, सपोज कर देयर आर नंबर ऑफ ओरिजिनेटिंग फील्ड लाइन आर 4, नंबर कितने हैं बेटा, 4 लाइंस ओरिजिनेट हो रही है। तो अगर आपका कोई 2Q चार्ज होगा, कितना होगा, 2Q चार्ज होगा, तो उससे कितनी होनी चाहिए, तो उससे 8 फील्ड लाइंस निकलनी चाहिए। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग फील्ड लाइंस ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, कि जितना ज्यादा चार्ज होगा उसी के प्रोपोर्शनल में नंबर ऑफ ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग फील्ड लाइंस भी उतनी ही ज्यादा होगी, है ना। तो ये आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी प्रॉपर्टीज, है ना। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कि अब तक हम क्या कर रहे थे कि हमारा चार्ज था वो पॉइंट चार्ज था, मैंने पॉइंट चार्ज रख दिया, मान लो ये Q, है ना। अब क्या करेंगे कि सपोज करके मैंने कंसिडर किया एक रॉड है, उसको अगर मैंने टोटल चार्ज Q दिया है, इसकी लेंथ L है ना, तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी, सपोज करके मेरा एक एरिया, ये मान लो कि एक एरिया है, ये सीट है, इस सीट को मैंने टोटल चार्ज दिया, टोटल चार्ज Q जो है वो A एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ सिमिलरली, तो उसकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी, और वॉल्यूमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स के लिए चार्ज डेंसिटी क्या होगी, और उसकी वजह से हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे वो सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।